Namaste, welcome to all. Disha Bharat has successfully orchestrated the 15-day MyBHARAT campaign, collaborating with diverse, influential personalities. Today marks the culmination of the remarkable journey, and we are gathered here for the valedictory function. Disha Bharat, a transformative organization dedicated to nurturing values and holistic education. With a deep-rooted belief in the words of Swami Vivekananda, education is the manifestation of perfection. We strive to instill character, integrity, and patriotism in our youth. Our initiatives blend ancient wisdom with modern approaches, fostering respect for culture, nation, and self. Though collaboration with higher education institutions, our programs empower students for life's challenges. Founded in 2005, Disha Bharat's mission is to transform youth to transform nation. Join us in sowing the seeds of values, guiding our youth towards a prosperous and principled country or future. Srimati Rekha Ramachandran, the driving force behind Disha Bharat. She founded Disha Bharat in 2005 to instill values in youth. Through innovative programs like Know Yourself, Know Your Country, Know Your Culture, Rekha has impacted over 4 lakh students and thousands of faculty members across 300 plus institutions. A revered motivational speaker and author, and earned accolades like the Power Women Award 2023. Her dedication as founder and secretary of Disha Bharat is truly commendable, making her one of the country's leading women in the value education. Now, I invite Rekha Ramachandran to provide us with a successful overview of the campaign and then proceed to introduce today's distinguished guest for the valedictory session. Over to you, Rekha ma'am. Namaste, Shri Gurubhyo Namaha, Namaste. Warm welcome to all of you on the auspicious occasion of the Independence Day. A very warm welcome to all of you from Disha Bharat family. Okay, having said that, today we have come to the last day, 15th day of the 4th edition of the My Bharat campaign. And come August, it is a time for celebration in Disha Bharat. Starting from 1st August to 15th August, it is time to sing for Ma Bharati, talk about her, contemplate about her. Rather, it is yagya that we do in Disha Bharat. And the last 15 days has been very enriching, and we have been seeing so much of energy and enthusiasm all over the place. And these are it's my pleasure to give you the overview of the report of the My Bharat campaign 2023. So I just request our Harish to share the screen, and here's a very brief report of the My Bharat campaign 2023 4th edition. The campaign was launched on the 20th of July 2023, and we had two vice chancellors and one chancellor of a university launching this 4th edition. It was on the 20th of July. Moving next. Yes, this was the campaign. We had a lot of people endorsing. The next activity that we have is the first activity rather of the campaign is the endorsement videos that we collected. People wishing us from all walks of life, starting from musicians to vice chancellors to great Mahatmas. Many people from different walks of life, they have endorsed the campaign and wishing the campaign of Disha Bharat, or a very successful campaign. This was one of the activities that we had, which started well before the campaign. And then we had the essay competition. We have given this as a circulation, and it's a state level essay competition, and students, like every year, thousands are participating in this essay competition and winning prizes in a very big, it's a very big motivation for students to read and write on the topic Bharat in Amritkal, role of youth. This is one more event. This is one of the events that we have in the My Bharat campaign 2023.
The next event that we have is the students program. We inspire students, we give them various topics on patriotic themes like agitations during the freedom movement and about the patriots, unsung heroes. All these we define the topics and we give it to the students. And the best part of this year's students role was we had nearly 31 students speaking from morning 7 to 7:30 every day from the last 1st of August to 15th of August. And we had students from different states participating. The highlight of this year's event is students from different states like Maharashtra, Gujarat, Jharkhand, and Chennai participating in these patriotic talks. And it was an extremely enriching thing for students also to read about these articles, to know more about Bharat and speak on the topic. So this is one event, the students program. And the third program that we have is state level essay competition, a symposium, state level symposium, Lead India, harnessing the power of youth towards ethical leadership. This program is meant for the faculty members of various colleges, and this in collaboration with RV Institute of Legal Studies, we did this program. More than 220 faculty members participated, and great personalities, very great leaders, IAS officers, vice chancellors participated to inspire the faculty on the role of a teacher and how do we sensitize the students and how do we harness their power toward ethical leadership for building a Amritkal Bharat. So this was a one more event that we had. The fourth event that we had was, yes, this is a Swarajya Ratha. I would like to make a special mention of Swarajya Ratha because it started from Bengaluru on the 1st of August from Baswangudi, one of the localities in a temple, a Ganesha temple in Baswangudi. It is it is a wide reach this time, and the team consisted of Naveen, who is in charge of the team, along with Lakshman and Jagadish, joined this team. They've reached a huge, on nooks and corner of Karnataka, reaching 26 districts of Karnataka, traveling more than 3,500 kilometers, and they've reached 132 schools. And every evening when we have the live series going on the live lecture series going on, more than 5 lakh people have viewed this from all over Karnataka. And other people from different walks of life, policemen, teachers, farmers, women, students, primary school students, I mean different walks of life people participated. They gave their prostrations, they saluted Bharat Mata. And our Naveen whom I met today, he said it was so inspiring to see every Bharatiya have the reverence for Bharat. And this is a extremely enriching experience, not only for Naveen but for all of us in Disha Bharat, because we still see that kind of a seed, that kind of a energy when the people see Bharat Mata. So this is one of the very, very successful rathas that happened, one of the events that happened from Disha Bharat this year. Going to the next event that we have, and this is a statistics of the Ratha. It reached around 68,000 students, and as I told you, 30 to 35,000 people watched. More than 5 lakh citizens, they prostrated to the Ratha. And our Naveen has given 128 speeches in the last 15 days that Ratha traveled across Karnataka. Yes, the next event that we had is a walkathon. We must see the walkathon, the energy of the youngsters coming and joining in this Independence Day celebrations in walkathon in Lalbagh this year. More than around 350 to 400 enthusiastic, energetic youth participated to walk for Bharat. With a great pride and sense of patriotism, they all walked, and it is also one of the very, very successful events that we had this time for the My Bharat campaign 2023. The next event that we had is talks in colleges. We have these talks in colleges, 1 hour outreach program on the role of youth in Amritkal. This is another important topic, and our volunteers who went to different colleges and spoke on the Independence Day, the significance of Independence Day to the students, and sensitized them and made them instill that kind of patriotism in our students. This is one more activity that we had. The next activity that we had is, yes, we start with this
the lecture series, evening lecture series. This was, as you all know, many were already a part of this series, because every evening from 7 to 8, very eminent historians and people from historians, academicians, scientists were a part of this important lecture series, where they really gave a picture of Bharat, past, present, and future. So we started the evening lecture series on day one. It was Professor Sunaina Singh. The topic she spoke was Nalanda, a legacy of Indian knowledge ethos. This was the first day one of the lecture series. And the day two of the lecture series was the role of women. Srimati Subrashtra, who spoke on the role of women in Ekatmata of Bharat. A brilliant speech. That too was a very nice speech. She's the co-founder of CHURN, the New Delhi-based organization. And the day three, we had Kiran, social media and Indian youth. This is about K.S. Kiran, who is a social media analyst based in Bangalore. And yes, this was a day three of the talk. And day four, it was, we all know him, Rishi Bagri, New India, Atmanirbhar Bharat, a thinker, analyst, and very popular person in the social media. Many of them would know him very well. This was on the day four. The next, on day five, it is by the talk by Sahil Agarwal, Knowledge Republic, Bharat Civilizational Dream. This was his talk, day 5. Day 6 was, I'm sorry, I'm just hurrying. Day 6 was My Bharat, Nationalism and Indic Cinema. None other than Vivek Ranjan Agnihotri, the maker of Kashmir Files. A very inspiring speech, a speech full of nationalism and patriotism. We all enjoyed this speech too. And the next day 8, it was evening lecture. Day 8 was My Bharat, a great civilization unconquered. He's a great historian by name Sandeep Balakrishna, author and thinker based in Bangalore. Day 7, this is day 8 was, yes, day 8, one of the very, very popular programs that we had was Chandrayaan 3, Bharat's Pride space mission. And this particular program by none other than Chairman of ISRO, Dr. S. Somanath. In fact, the best part of this event was it was widely covered in all the English media and the print media and the Kannada media, both print and the news channels had very given us a wide publicity after the talk of Mr. Dr. S. Somanath, one of the very popular lectures that happened in this year's lecture series. And day 9, it was role of temples and traditions in national integrity by Srimati Shefali Vaidya. Yes, day 9. Day 10, it is none other than a person who works with she's an international relations scholar based in London, UK, and she's a senior research fellow in India Foundation. She is none other than Ms. Soumya Chaturvedi, and her talk was on Indian strategic leadership in the changing world order. A very important topic in today's world is the Indian strategic leadership in the changing world order. A brilliant speech that was. And then on the August 11th, we had Sri Rajat Sethi, author and thinker. We all also have seen him many times in the national media. He gave a talk on My Bharat, challenges before the nation, which we all need to understand, very important challenges and the way forward. He spoke very well on this topic, Sri Rajat Sethi ji. Day 12, it was Bharat, Education and Vision for 2047. And this was none other than Sri Shantishri Dhulpudi Pandit, Vice Chancellor of Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Very, very rooted in Indian culture and the education, that India's background and culture. Very nice talk. And yes, day before, 13th of August, the talk was on a man who could have prevented partition, Veer Savarkar, the man who could have prevented partition. The speaker was Sri Uday Mahorkar, author, thinker, Information Commissioner, Government of India, New Delhi. A brilliant speech. This too was very, very nice. And yesterday, on 14th of August, we had, all of us know, Bharat in Amritkal. And the speaker was none other than our Finance Minister, Honorable Finance Minister, Srimati Nirmala Sitaraman.
a brilliant speech that she gave. She gave so much of data, so much of statistics on what the government is, how much of work government is doing towards going towards the Amrit Kal. We all should definitely go back to the Disha Bharat Facebook page to see all these lectures. And today, on day 15, we have come to the valedictory address, and it is none other than, we are in a very short while, Dr. Manmohan ji is going to speak to us. But before even ending this talk, I would like to say, everything that has a beginning has to end, but that ending has to have a new beginning, a new dawn. And that new dawn is none other than, that dawn should be, how do we reiterate, reinforce the message of Bharat. And this is a huge campaign that we were able to reach lakhs of people, and this could not have been possible without the support of a dedicated volunteers of Disha Bharat, who was drawn from various walks of life, from various segments of life, but with one mission, to make this Mahayagya a great success. So heartfelt gratitude to each and every team, Disha team member, to have given this wonderful, given this kind of the dedication and commitment they have shown to make this yagya a grand success. Thank you, each one of you, for this. Now, having said that, I'm now here to introduce our speaker of the day, Shri Manmohan Vaidya ji. When we say, when we have a yajna, and when some great person or a Swamiji comes to the yajna, we feel the Lord has acknowledged, or he is very pleased with the yajna. So similarly, the Bharat Mata yajna has happened for 15 days. And just because the gods and Bharat Mata is pleased with our yajna, today we have a speaker who is none other than Shri Manmohan Vaidya ji, a very great personality and very inspiring personality himself. It's a great privilege and honor for me to talk about, to introduce Sri Manmohan Vaidya ji to all of you. He is the Saha Sarkaryavaha, the Joint General Secretary of the Rashtriya Swayamsevak Sangh. He hails from a family of patriots. His father, a very senior functionary of the RSS, Shri M.G. Vaidya, and his mother, Sunanda, have sown the seeds of patriotism from his childhood. And Saji, Shri Manmohan ji, is a PhD in nuclear chemistry, and he worked as a professor for 2 years in Nagpur. But given his deep-rooted passion for Bharat Mata, it is but obvious that Ji became a pracharak. The pracharak is a full-time pracharak who devoted himself, who dedicated himself to the cause of Bharat Mata in the year 1983. He started his journey of a pracharak in Gujarat and Maharashtra. Later, he was given the responsibility of the Vishwa Vibhag, the overseas work of Bharat, Rashtriya Swayamsevak Sangh, which we call as Hindu Swayamsevak Sangh. Over 10 years, Manmohan Vaidya ji was serving in US and the West Indies. He served and built the organization he was very instrumental in building the Hindu Swayamsevak Sangh across the globe. And in 2005, he came back to India, and he was given the responsibility to take up the communication cell, the Prachar Vibhag of the RSS. He became the Akhil Bharatiya Prachar Pramukh of the RSS, and he was very instrumental in bringing technology and various aspects to improve and convey the message of Bharat through print media to different types of medias. He used the entire technology to make RSS a dynamic force to reckon with. And after Manmohan Vaidya, now he is also serving as the member of the Adhivakta Parishad, inspired wing that is having the lawyers of the RSS. They have a wing called Adhivakta Parishad. He is the mentor for them. He is also a mentor for the Pragya Bharati, Vigyan Bharati, science for the scientists. He's mentors for that organization. And Ji is a voracious reader, a orator, a well-known think tank from across the globe, and he spent several articles on socio-cultural issues, national issues. His interviews have been published in various journals across India and abroad, and he's written articles in Hindi, English, and other languages. This is what is a very inspiring introduction to Shri Manmohan Vaidya ji. People who know him,
people have listened to him have always known him as a great speaker who can inspire people, who can anchor people to the cause of Bharat Mata. And when I first listened to him, we became so restless that we need to rededicate ourselves to the cause of Bharat. That was a powerful speech that we heard from Manmohan ji, and it's a but natural and it is great opportunity and privilege for Disha Bharat to have a fitting finale and a message from none other than Shri Manmohan Vaidya ji. Thank you so much, Manmohan ji, to come to a Disha Bharat platform. A warm welcome to you, and the floor is yours. Thank you so much. Namaste and welcome. And thank you to all our viewers for giving us this kind of support and encouragement. Namaste to one and all of you. Namaste. Over to you, Manmohan ji. नमस्ते। दिशा भारत ने मुझे मेरे विचार व्यक्त करने के लिए बुलाया, मैं उनका आभारी हूँ। दिशा भारत नाम ही बहुत सार्थक है। जब एक दिशा तय करके उस दिशा में चलते हैं उसे यात्रा कहते हैं, और दिशाहीन चलने को भटकना कहते हैं। इसलिए दिशा महत्व की है भारत के लिए। क्यों महत्व की बात है? तो 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज ओवर। जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, 3 देशों का बहुत स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ था। उन्होंने 1945 के बाद फिर से अपने देश को रीबिल्ड करना शुरू किया। 1948 में इजराइल अपने देश में अपने नई देश बनाने की यात्रा उनकी शुरू हुई, और भारत 1947 में स्वाधीन हुआ। अब 47, 48, 45 लगभग समय एक ही है। लेकिन आज हम देखते हैं इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, इजराइल, इन 4 देशों ने जितनी प्रगति की है उतनी प्रगति भारत नहीं कर सका है। क्या कारण होगा? जापान, जर्मनी, इंग्लैंड जैसा भारत का स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर में। जैसे इजराइल को लिटरली फ्रॉम स्क्रैच सतत संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना पड़ा, ऐसी स्थिति भारत की नहीं थी। हमारे पास रिसोर्सेस थे, टैलेंट, प्रतिभा, पॉपुलेशन सब था, लेकिन हम जितनी चाहिए उतनी प्रगति नहीं कर पाए। क्या कारण होगा? तो सैमुअल हंटिंगटन ने अपने वो अरबी पुस्तक में लिखा है एक महत्व की बात, अनलेस वी डिसाइड हु वी आर एज ए पीपल, we cannot decide what our priorities can be। यहाँ पर ध्यान में आता है कि इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, इजराइल, इन देशों के लोगों को, सभी लोगों को, हम कौन हैं, हमारे पुरखे कौन थे, हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, हमारी हिस्ट्री क्या रही, इसके बारे में सब यूनानिमस है, सबका एक मत है। उसके अंतर्गत उनकी राजनीति चलती है। एंड अनफॉर्चुनेटली भारत इतना प्राचीन देश होने के बाद भी भारत के लोगों में हम कौन है, ऐसी पीपल हु वी आर, हमारे आइडेंटिटी क्या है, हमारा इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में एक मत नहीं है। इसलिए हम हमारे प्रगति की दिशा, हमारे फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी की दिशा हम हमारे स्व के आधार पर नहीं तय कर सके, तो पश्चिम के देशों का अनुकरण करके हम आगे बढ़े। इसलिए जितनी हमारी प्रगति होनी चाहिए उतनी हमारी प्रगति नहीं हुई है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने स्वदेशी समाज में कहा है, हमें पहले हम कौन है, हम जो है वह बनना पड़ेगा, फिर सारी बातें, हमारा सारा पुरुषार्थ प्रकट होगा। इसलिए भारत क्या है इसको समझना बहुत आवश्यक है। भारत एक यूनिक कंट्री, नेशन, पीपल है। तो घटना बताऊंगा कि ईस्वी सन 1 से 1700 तक भारत का वर्ल्ड ट्रेड में शेयर हाईएस्ट था, मोर देन 30% था, जबकि अमेरिका, यूरोप मिलाकर 2% से कम था। और हमारे बारे में हमको ऐसा कहा जाता है कि भारत एग्रेरियन पीपल, भारत कृषि प्रधान देश है। ये वास्तव में सही वर्णन नहीं है। हमारे यहाँ कृषि अच्छी थी, खेती अच्छी थी, लेकिन हम अनाज बेचते नहीं थे। जब वर्ल्ड ट्रेड में
मोर देन 30% शेयर था, तो क्या बेचते थे? Those were the goods. हमारे यहाँ टैनिंग इंडस्ट्री अच्छी थी, तो चमड़े की चीजें बहुत अच्छी बनती थी। यहाँ पर मेटलर्जी अच्छी थी, आयरन, स्टील, कॉपर, ब्रास, इनकी चीजें बनती थी। कपड़ा उद्योग अच्छा था, परफ्यूम इंडस्ट्री अच्छी थी, स्पाइसेस थे। ये सारे पदार्थ चीजें फैक्ट्रीज में नहीं बनती थी, घरों में बनती थी। प्रत्येक घर में उद्योग था। इसलिए भारत का सही वर्णन भारत उद्योग प्रधान देश था, है, ये मुख्यतः कहना चाहिए। अब ये चीजें बेचने के लिए, व्यापार के लिए फॉर सेंचुरीज भारत के लोग दुनिया भर में गए, लेकिन जैसे अरब यूरोपियन लोगों ने लूटा है, आक्रमण किया है, हिंसा की है, जबरदस्ती कन्वर्ट किया है, भारत के लोगों ने किसी भी देश में, we did not colonize them, we did not plunder their resources, we did not try to convert them, उनका गुलाम बनाना, उनका व्यापार नहीं किया जो अरबों ने, यूरोपियन लोगों ने किया है। तो भारत का ये अलग ट्रेट है। सैकड़ों वर्षों तक भारत जाता रहा है, ऐसा भारत ने क्यों नहीं किया? भारत बहुत डिफरेंट, क्यों? क्योंकि भारत अलग है। अभी कोरोना पैंडेमिक में हमने देखा, सारे दुनिया में कोरोना पैंडेमिक था, इन मेनी कंट्रीज, परंतु अदर देन भारत सभी देशों में it was only the state machinery, those were active to serve and save people. भारत में भी स्टेट मशीनरी, स्टेट एम्प्लॉइज ने जी जान से लोगों की सेवा तो अवश्य की है, परंतु भारत एकमात्र देश ऐसा है जहां सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ इन लैक्स ऑफ नंबर लोग, पीपल हैव कम आउट टू हेल्प सर्व पीपल। ऐसा भारत के बाहर कहीं भी नहीं हुआ है। और फ्लड या अर्थक्वेक के बाद जाकर सेवा करना इज डिफरेंट। लेकिन एक हाईली इन्फेक्शियस डिसीज है, हाईली फैटल है, इतनी मौतें हो रही थी, इतनी मृत्यु हो रहे थे, मेरी भी जान को खतरा है, यह जानकर भी लाखों लोग, लड़कियां, विमेन, पुरुष, विद्यार्थी, हर जाति के, हर प्रदेश में लोग बाहर निकले हैं। ऐसा केवल भारत में हुआ है, ये भारत की विशेषता है। तो भारत अलग बिहेवियर भारत का क्यों है, इसको हमको विचार करना चाहिए। तो ये भारत का यूनिकनेस किसमें है, इसका विचार करेंगे तो मेरे ख्याल से 3 मुख्य बातें हैं। पहली बात यह है कि भारत का जो व्यू ऑफ लाइफ है, दुनिया को देखने का जो दृष्टिकोण है, वो स्पिरिचुअलिटी बेस्ड है, अध्यात्म आधारित है, और इसलिए वह इंटीग्रल है, होलिस्टिक है, एंड दैट्स व्हाई इट सीज द एंटायर क्रिएशन कनेक्टेड। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। इस व्यू ऑफ लाइफ ने, अध्यात्म आधारित व्यू ऑफ लाइफ ने भारत के पर्सनैलिटी को, सभी लोगों के एक शेप दिया है, एक आकार दिया है। इस पर्सनैलिटी के 4 मेजर ट्रेट्स हैं। नंबर 1, एकम सद विप्रहा बहुधा वदन्ति, सत्य, ट्रुथ, गॉड, ईश्वर एक है, उसके नाम अनेक हो सकते हैं, वहां तक पहुंचने के मार्ग भी अनेक हो सकते हैं, सभी समान है, यह केवल भारत मानता है। क्योंकि भी गलती से हमारी, जैसे एग्रेरियन कंट्री कहते थे, लेकिन एक्चुअली हमारे इंडस्ट्रियस था सोसाइटी, उसी तरह टॉलरेंस की बात हम करते हैं, सहिष्णुता भारत की विशेषता है। वास्तव में टॉलरेंस में देयर इज ए सीड ऑफ इंटॉलरेंस। When I say that I can tolerate you, actually I want to hit or kill you, but because it doesn't look good, I will tolerate you till you get converted. ये वहां पर टॉलरेंस की कल्पना आई। लेकिन 1893 के शिकागो स्पीच में स्वामी विवेकानंद ने कहा, we go beyond tolerance and we accept all ways to be true। तो सभी मतों का स्वीकार करना, ये वास्तव में भारत की विशेषता है, टॉलरेंस नहीं है। दूसरी भारत की विशेषता है कि ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत, वे जब कहा है तो एक ही चैतन्य, स्पिरिट सारे चराचर में व्याप्त है। इसलिए सबके मूल में एक है,
इस तो डाइवर्स मैनिफेस्टेशंस के भीतर अंडरलाइन एकता को देखने की भारत की दृष्टि है। सो तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये भारत की परंपरा रही है। इसलिए भारत का वर्णन इंडिया एज ए कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर्स ऐसा कहते, यह भी वास्तव में सही नहीं है। So we don't have diverse cultures. सही वर्णन यह है, इंडिया has a culture that celebrates diversity. डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने का सिखाने वाली हमारी संस्कृति एक है, इसका आधार अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी है। ये हमको समझने की आवश्यकता है। तीसरी विशेषता भारत की है कि भारत मानता है, ये हिंदू वे ऑफ लाइफ मानती है कि एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। स्त्री पुरुष दोनों के लिए सोल शब्द लागू होता है। तो वीमेन एंड मेन दोनों में इक्वल पोटेंशियल डिविनिटी है, यह केवल भारत मानता है। एंड द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इसके लिए 4 मेजर मार्ग बताए, भक्ति योग, कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो स्पीच में यह कहा था, that I am proud to tell you that I am from a country where our divine language. स्वामी विवेकानंद ने शिकागो स्पीच में यह कहा था, that I am proud to tell you that I am from a country. Should I continue? Yes. हाँ, तो वहां स्वामी जी ने कहा था, I am proud to tell you that I am from a country where our divine language Sanskrit there is no word for exclusion because we don't exclude anybody. उसी तरह ये इसलिए भारत के जो 4 मार्ग अपने अंदर के डिविनिटी को मैनिफेस्ट करने के लिए बताए हैं, तो नॉट बीइंग एक्सक्लूसिव, एक ही लेना, दूसरे को टच नहीं करना, ऐसा भारत ने कभी नहीं कहा। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एनी ऑफ दिस 4 or 2 or more or all and be free। तो ये हर व्यक्ति का जो डिविनिटी को मैनिफेस्ट करने का जो मार्ग है, that can be a varied composition of भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग। ये हर एक का अलग अलग हो सकता है। एक घर में माँ खाना बनाती है, there are 6 members। खाना बनने के बाद किसी को उसमें थोड़ा ज्यादा मिर्ची चाहिए, तो मिर्ची की चटनी मिक्स करते हैं। किसी को खट्टा चाहिए, थोड़ा अचार मिला लेता है, कोई थोड़ा गुड़ मिलाता है, कोई दोनों मिलाता है। हर एक की रुचि के अनुसार अपनी टेस्ट बनाकर वो भोजन करता है। सिमिलरली प्रत्येक के प्रकृति रुचि के अनुसार उसका जो डिविनिटी को मैनिफेस्ट करने का मार्ग चुनने का, इसको रिलीजन कहा जाता है। धर्म रिलीजन अलग अलग है, दोनों को मिक्स करने से, इक्वेट करने से सारा कंफ्यूजन है। धर्म इज टोटली डिफरेंट। तो मेरी डिविनिटी को मैनिफेस्ट करने का मेरा रिलीजन, उसका प्रकार, इट कैन बी वेरिड कंपोजिशन ऑफ कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग। ये मेरा अधिकार। इसलिए हमारे यहाँ स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी रही है हमेशा। दत्तोपंत ठेंगड़ी नाम के श्रेष्ठ चिंतक कहते थे कि भारत में द रिलीजन इज पर्सनल एज one's own toothbrush। ये भारत की विशेषता। इसलिए ये चारों बातें मिलाकर जो भारत की पर्सनैलिटी बनी है, बिकॉज ऑफ दिस स्पिरिचुअल बेस्ड वे ऑफ लाइफ, इसको दुनिया में हिंदुत्व नाम मिला है। हिंदू वे ऑफ लाइफ नाम का डॉक्टर राधाकृष्णन का पुस्तक भी है। इसलिए इसके साथ अपने आप को कनेक्ट करने वाले, इसके बारे में प्राइड महसूस करने वाले, इसको जीवन में प्रैक्टिस करने का आग्रह करने वाले, और इसमें कालांतर में कुछ न कुछ दोष आते हैं उनको ठीक करने के लिए प्रयत्न करने वाले, ऐसे सब लोगों को हिंदू यह नाम मिला है। कि हिंदू इस राष्ट्र के, पश्चिम का नेशन वो स्टेट नेशन है, भारत का राष्ट्र पीपल ओरिएंटेड है। इसलिए राष्ट्र मतलब समाज, पीपल, इसलिए राष्ट्र का नाम हिंदू है, इसलिए इसको हिंदू राष्ट्र कहते हैं। ये पहला बात है। दूसरी भारत की विशेषता ऐसी है कि भारत हैड नेवर बीन ए वेलफेयर स्टेट। रविन्द्रनाथ टैगोर का स्वदेशी समाज नाम का ऐसे बहुत सुंदर है।
उन्होंने कहा कि वेलफेयर स्टेट ये पश्चिम की कल्पना है। ट्रेडिशनली हमारे यहाँ फॉरेन अफेयर्स, जुडिशियरी, डिफेंस, सिक्योरिटी, ये 4 विषय केवल राजा के पास होते थे। बाकी एजुकेशन, हेल्थ, कॉमर्स, इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, मंदिर, देवालय, यात्रा, मेला, संगीत, नाटक, इसकी समाज की अपनी व्यवस्था थी। इसके लिए राजकीय कोष से धन ट्रेजरी से नहीं आता था, समाज देता था। जैसे एक खंबे पर खड़ा कोई तंबू, टेंट है, एक ही खंबा आधार है, खंबा टूटता है तो तंबू धराशायी होता है। परंतु 4-5 खंभों पर खड़ा तंबू है, एक खंबा टूटता है फिर भी तंबू खड़ा रहेगा, टेंट खड़ा रहेगा, और टूटे खंबे को फिर से खड़ा करने की इंटरनल व्यवस्था रहेगी। दैट अरेंजमेंट। इसलिए यहाँ राजा पराजित हुए, परकियों का राज्य आया, परंतु हमेशा, समाज हमेशा अपराजित रहा है, एकदम इनविंसिबल रहा है, क्योंकि समाज राज्य पर आधारित नहीं था। यह भी भारत की विशेषता है। भारत की तीसरी विशेषता है कि भारत ने भौतिक समृद्धि, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी को भी महत्व दिया है, लेकिन केवल वही करना अच्छा नहीं माना है। तो स्पिरिचुअल परस्यूट, एक आध्यात्मिक उत्कर्ष, इसको मोक्ष कहा है, दोनों का महत्व है। इसलिए जो मटेरियल भौतिक समृद्धि, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के लिए आवश्यक ऐसी जो भी ज्ञान है, किसी ने MBA किया है, किसी ने लॉ किया है, कोई CA है, कोई लेक्चर है, मैंने केमिस्ट्री में PhD किया है, ये सारे भौतिक जगत के संबंधित विषय है। इसको शास्त्र में अविद्या कहा है, और विद्या वह है जो आध्यात्म विद्या है, जो मोक्ष का मार्ग सिखाती है। इसलिए हमारे यहाँ कहा है सा विद्या या विमुक्तये, जो मोक्ष की दिशा देती वह विद्या है। और ईशावास्य उपनिषद में 9th वर्ष शेष अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, यानी जो केवल भौतिक समृद्धि के लिए अविद्या की उपासना करते, केवल वही करते हैं, वे अंधकार में प्रवेश करते, they are in darkness। एंड नेक्स्ट सेंटेंस सेज, और जो केवल विद्या में रत रहते हैं वो और गहरे अंधकार में जाते हैं, ऐसा कहा है। और 11वां वर्ष है विद्यांच अविद्यांच यहाँ तक उभयम वेदः, जो विद्या अविद्या दोनों को एक साथ जानता है। अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतमश्नुते, तो अविद्या के आधार पर भौतिक समृद्धि प्राप्त करेंगे और विद्या के आधार पर अमरत्व प्राप्त करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ दोनों को साधने का विशेष महत्व रहा है। ये केवल भारत की विशेषता है। इसलिए हमारे यहाँ अभ्युदय निश्रेयस, अभ्युदय मतलब भौतिक समृद्धि, भौतिक उत्कर्ष, निश्रेयस यानी मोक्ष, दोनों को साधने को धर्म कहा है। संघ की प्रार्थना में भी समुत्कर्ष निश्रेयस यह जो कहा है, वो दोनों को साधने का ही जीवन का साफल्य माना गया है। और इसलिए ये भारत की एक तीसरी विशेषता है। भारत की चौथी विशेषता ऐसी है कि भारत में शास्त्र ज्ञान का महत्व है, साथ साथ शक्ति साधना को भी महत्व दिया गया है। शक्ति की उपेक्षा करने से ही हमको अनेक संकटों को झेलना पड़ा है, लेकिन शास्त्र पहले है, शक्ति बाद में है, लेकिन दोनों साथ साथ चलेंगे। यह भी भारत का परंपरा से आग्रह रहा है। इसलिए हमारे यहाँ कहा है अग्रतः चतुरो वेदान पृष्ठतः सशरम धनु इदम शास्त्रम इदम शस्त्रम शापादपि शरादपि, यानी शास्त्र पहले आगे है, 4 वेद आगे है, लेकिन उसके साथ रक्षा के लिए शक्ति का आधार आवश्यक है। इसलिए धनुष्य और बाण चढ़ा हुआ, धनुष्य भी तैयार है, रेडी है, दोनों को साधना। लेकिन धनुष्य पहले नहीं है, शास्त्र पहले है। अग्रथा चतुरो वेदान कहा है, यह भी भारत की विशेषता रही है। और एक बात कहूंगा मैं कि इतना प्राचीन समाज है तो अनेक प्रकार के परिवर्तन दुनिया में होते हैं, उसके अनुसार
हमारे समाज में भी नए नए परिवर्तन होने की परंपरा भारत में रही है, इसलिए यहाँ पर अनेक स्मृतियां बनी है। स्मृति लगभग कोड ऑफ कंडक्ट है। लेटेस्ट स्मृति हमारा आज का संविधान है। जैसे विवेकानंद ने कहा था कि फॉर एक्सक्लूजन देयर इज नो वर्ड इन संस्कृत, उसी तरह फॉर ब्लास्फेमी भारतीय किसी भाषा में शब्द नहीं है, क्योंकि कोई नई बात कहने के लिए ब्लास्फेमी नहीं माना गया है। ये लास्ट वर्ड है, लास्ट प्रॉफिट है, इसके आगे कोई नहीं बोलेगा, सबको इसी को फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा भारत ने कभी नहीं कहा है। समय समय पर आध्यात्मिक पुरुष यहाँ पर अवतार लेंगे और समाज की सब शिथिल चेतना को फिर से जगा कर उसको रिजुविनेट करने का प्रयत्न करेंगे। नए परिप्रेक्ष्य में, नए संदर्भ में धर्म के जीवन की व्याख्या करेंगे। यह भारत की परंपरा रही है, यह भी भारत ने माना है। तो ऐसी भारत की कुछ दो खास विशेषता है। तो ये भारत की सारी विशेषता का बेस हिंदुत्व है। जैसे मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान और भारत दोनों पहले एक समाज थे, एक देश थे। जब पार्टीशन हुआ, जब स्वातंत्र का उत्सव मना रहे हैं, कल अखंड भारत का स्मृति दिवस हमने मनाया, तो दो देश बने, दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन एक साथ लिखे गए, परंतु पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में वहां के माइनॉरिटीज को समान अधिकार नहीं है, परंतु भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में सो कॉल्ड माइनॉरिटीज को समान अधिकार, कुछ ज्यादा अधिकार है। ऐसा अंतर क्यों हुआ? क्योंकि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का विचार करने वालों में हिंदू बहुल लोग अधिक थे। ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदुत्व, हिंदूनेस है, ये मुख्यतः समझने की बात है। इसलिए और एक शब्द के बारे में बहुत कंफ्यूजन हमारे यहाँ है, वो यानी सेकुलरिज्म के बारे में। अनेक लोग भारत तो पहले से सेकुलर रहा है वगैरह ऐसे वास्तव में कहते रहते हैं। एक्चुअली सेकुलरिज्म का जन्म यूरोप में 16वीं सेंचुरी के बाद का है और थियोक्रेटिक स्टेट के कंट्रोल से अपने सारे भौतिक जगत को सेपरेट करने की प्रक्रिया को, विचार को उन्होंने सेकुलरिज्म कहा है। सेकुलर मैटर्स पर भी जो भौतिक जगत के विषय थे उन पर भी पोप का ही कंट्रोल चलता था। लोगों ने कहा कि रिलीजियस मैटर में पोप को मानेंगे, हमारे सेकुलर मैटर्स को मुझसे सेपरेट करेंगे। भारत में भी नेवर हैड ए थियोक्रेटिक स्टेट, इसलिए वहां पर सेकुलरिज्म की आवश्यकता नहीं थी, भारत को वहां पर थी। इसलिए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने ये प्रस्ताव आया था कि भारत की नई सरकार बन रही शुड बी कॉल्ड एज सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक ऑफ इंडिया। उस पर अच्छी चर्चा हुई, चर्चा होकर सबने निर्णय किया वी डोंट नीड इट बिकॉज वी नेवर हैड ए थियोक्रेटिक स्टेट हियर। बाद में 76 में विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट डिमांड, विदाउट नीड, वो भी अनअमेंडेबल प्रिएम्बल में उन्होंने जो अमेंडमेंट किया गया, दैट वाज द बिगेस्ट फ्रॉड विद द कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली। लोगों को लगता है कि हम सेकुलर है, वास्तव में भारत, मैं पूछता हूँ उनको उसका अर्थ क्या है, दैट वी ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली। ये तो भारत पहले से करता आ रहा है। 2nd सेंचुरी में यहाँ पर जूस आए, 6th सेंचुरी में पारसीज आए, 8th सेंचुरी में सीरियन क्रिश्चियंस केरल में गए। The people where these people went, the local people in Bharat were ruled by different kings. उनकी भाषा अलग थी, उनकी देवता अलग थी, but their treatment to these people coming for asylum was same. सबका स्वागत हुआ, सबको अपने रिलीजन का प्रैक्टिस करने का अधिकार मिला, लोगों ने उनके पूजा स्थल खड़े करने के लिए जमीनें दी है। तब तो सेकुलरिज्म दुनिया में कहीं नहीं था, भारत ने ये किया है, इसलिए ये भारत के हिंदुत्व के कारण है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के कारण हम ऐसे नहीं है, हम ऐसे पहले से रहे हैं, इसलिए हमारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे खलील जिब्रान की कविता यूर चिल्ड्रेन, वो कहते हैं पेरेंट्स को that your children are not your children, they are the manifestations of life longing for itself. अगला वाक्य बहुत महत्व का है, वो कहते they come through you not from you। उसी तरह हमारे संविधान में बातें, हमारे यहाँ जो परंपरा थी, परंपरा के कारण संविधान के थ्रू थोड़ा सा ही है, संविधान के कारण नहीं है। वो संविधान में है
क्योंकि हम लोग ऐसे रहे हैं। और इसलिए भारत में सेकुलरिज्म के बारे में ऐसे ही, स्टेट शुड बी सेकुलर, व्यक्ति सेकुलर वास्तव में हो नहीं सकता है। हर एक अपना रिलीजन होगा, कोई अनिष्ट, कोई यानी भगवान को न मानने वाला भी हो सकता है, लेकिन सेकुलर नहीं। द स्टेट शुड बी, द सिस्टम, द मशीनरी शुड बी सेकुलर। जैसे अगर कोई स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन शुड बी सेकुलर, नॉट द चेयरमैन, एंड दे शुड ट्रीट ऑल द पैसेंजर्स इक्वली, ये मुख्यतः कल्पना है। इसलिए सेकुलरिज्म के कारण, सेकुलरिज्म भारत की विशेषता नहीं है, भारत की विशेषता हिंदुत्व ही है। और हिंदुत्व के कारण यहाँ पर डेमोक्रेसी भी है, हिंदुत्व का यहाँ पर सेकुलरिज्म जो लोग समझते हैं, वास्तव में उसकी जरूरत नहीं थी। वह भी सब रिलीजियंस को समान ट्रीट करना, यह भारत की परंपरा पहले से रही है। इसलिए इस भारत की हिंदुत्व की पहचान है, इस पहचान को हमको ठीक से समझना चाहिए और अपने पर्सनल, फैमिलियल, सोशल, प्रोफेशनल लाइफ में ये हिंदुत्व मैनिफेस्ट होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण की बात। रिलीजन को हम लोग हमारी भाषा में उपासना कहेंगे, जो अपने अंदर के डिविनिटी को मैनिफेस्ट करने का मैंने पसंद किया और चुना हुआ मार्ग है। धर्म इज डिफरेंट। धर्म के लिए अंग्रेजी में शब्द नहीं, बिकॉज द कंसेप्ट इज नॉट देयर। मेरे ख्याल से धर्म इज कनेक्टिंग टू द लार्जर यूनिट, क्लोज विद कैपिटल आई, मैं एंड ओपन योर आईज। और जो हमारे नहीं, वे भी हमको अपने लगने लगते हैं, उनको अपने पन से कुछ करने का मन होता हमारा है, इसलिए हम करते हैं, दैट्स धर्म। जैसे कोरोना पैंडेमिक में सरकारी कर्मचारियों ने जी जान से सेवा की, उनका धर्म था, ड्यूटी के रूप में था। फिर बाकी बहुत बड़ा समाज का वर्ग वो धर्म के नाते, यानी स्पिरिचुअलिटी के आधार पर, दे गॉट कनेक्टेड विद द पीपल, विद देयर आइडेंटिटीज, विद देयर रूल्स, और दैट प्रॉम्प्टेड देम टू एक्ट। अपने घर के बाहर निकलकर जान को खतरा जानते हुए लोगों ने सेवा की है, दैट इज धर्म। तो क्लोज योर कैपिटल एंड ओपन योर आईज, देन द सर्कमफरेंस ऑफ बी एक्सपांड्स। फिर जो हमारे लिए वे भी हमको अपने लगने लगते हैं, उनके लिए करने का मन होता है। ये करना, समाज को देना, एक्चुअली समाज को लौटाना, गिव बैक टू सोसाइटी, धर्म। इसलिए धर्मशाला होती है, वह लोगों के लिए होती है। मेरा घर तो मेरा हुआ, लोगों के लिए मकान बना, उसको धर्मशाला कहते हैं। धर्म डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। भगिनी निवेदिता ने कहा है, जिस समाज में लोग अपने परिश्रम का पारिश्रमिक रेम्यूनरेशन अपने ही पास न रखकर समाज को देते हैं, ऐसे समाज के पास एक्यूमुलेटेड पारिश्रमिक रेम्यूनरेशन के कैपिटल पर समाज संपन्न समृद्ध बनता है और समाज के हर व्यक्ति संपन्न समृद्ध बनती है। आगे वो कहती है, और जिस समाज में लोग अपने परिश्रम का रेम्यूनरेशन समाज को न देकर अपने ही पास रखते हैं, ऐसे समाज में कुछ लोग अवश्य प्रॉस्परस होते हैं, परंतु समाज पुअर रहता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद केंद्र की प्रार्थना में एक श्लोक है, जीवने यावत आदानम स्यात् प्रदानम ततोधिकम। जीवन में जितना हमने ग्रहण किया है उससे अधिक हम दे सके, ऐसी हमारी प्रार्थना है भगवान को पूर्ण का। तो समाज को देना, इसको टागोर ने चैरिटी कहा है, और समाज को लौटाना, वापिस करना, इसको धर्म कहा है। और ये धर्म की कल्पना भारत के संविधान कर्ताओं में स्पष्ट थी। इसलिए जब देश आजाद होकर नया देश बना, तो पार्लियामेंट में, लोकसभा में लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय, राज्यसभा में लिखा है सत्यम वद धर्मम चरम। सुप्रीम कोर्ट का मोटो है यतो धर्मस् ततो जयः। और हमारे राष्ट्र ध्वज पर आज हमने 15 अगस्त के दिन राष्ट्र ध्वज का खूब जगह सम्मान किया है। तो राष्ट्र ध्वज जो चक्र है वो धर्म चक्र है, व्हील ऑफ धर्म है। और व्हील तो घूमने के लिए होता है, ये चक्र कैसे घूमेगा? एवरी स्मॉल एक्ट ऑफ गिविंग बैक टू सोसाइटी गिव्स ए पुश टू द व्हील ऑफ धर्म एंड इट मूव्स। इस प्रकार से चक्र गतिमान होगा। और लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्र ध्वज, इन सभी जगह धर्म शब्द का संदर्भ उल्लेख है। वो जैसे बाय चांस नहीं है, उसके पीछे थॉट है। और भारत का आधार यह रहा है कि समाज के सारे एक्टिविटीज को इस धर्म के माध्यम से हमको सस्टेन करना है,
सपोर्ट करना है, धर्म चक्र परिवर्तन करते रहना है, राज्य का, स्टेट का, गवर्नमेंट का रोल सीमित करते हुए हम सारे समाज की जिम्मेदारी लेंगे। इस प्रकार का भाव जगना, ये जो भारत का स्व है, इस भारत के स्व को हमको जानना है, उसके साथ कनेक्ट करना है, उसका प्राइड महसूस करना है, उसमें आए हुए दोषों को ठीक भी करना है, उसको जीवन में हमको इनैक्ट करना है, जीना है। ये होना यानी एक्चुअली राष्ट्रीय बनना है। मुझे लगता है कि आज के 15 अगस्त के निमित्त इस भारत की पहचान अगर पक्की है, इसके आधार पर भारत की सभी नीतियां तय होगी। ये पहचान न होने से, इसको डिनाय करने से हम गलत दिशा में चल पड़े थे। इसलिए पहले 60-65 साल तक भारत जितनी प्रगति करने से उतनी नहीं कर सकी। 2014 के बाद जो एक राज्य परिवर्तन आया सरकार में, वो केवल एक पार्टी की सरकार जाकर दूसरे पार्टी की सरकार आई, ऐसा नहीं है। वो सिग्निफिकेंस क्या है इस चेंज का? तो संडे गार्डियन नाम का जो ब्रिटेन से अखबार निकलता है, वीकली पेपर, उसका 18 में 2014 का एडिटोरियल है। 18 में वो संडे, 16 मई को पार्लियामेंट के रिजल्ट्स आए थे, तो संडे गार्डियन पब्लिश हुआ 18 को। उनका एडिटोरियल कहता है, संपादक ही कहता है कि टुडे 18 मई 2014 may go well down in the history of India as Britain finally left India। तो ब्रिटेन का गार्डियन ने ये लिखना, ये बहुत महत्व की बात है। आगे लिखते हैं, नरेंद्र मोदी विक्ट्री in these elections marks the end of a long era in which the structure of power did not differ greatly, through which Britain ruled this subcontinent. India under was in many ways a continuation of British Raj by other means। तो ये जो भारत का स्व लेकर प्रकट होने की बात शुरुआत हुई है, इसलिए हम देखते हैं कि भारत की रक्षा नीति, भारत की विदेश नीति, भारत की शिक्षा नीति, भारत की अर्थनीति अब ये भारत के स्व के दिशा में आगे धीरे धीरे बढ़ रही है। अब ये भारत की पहचान को लेकर आगे बढ़ रहा है। दुनिया इस भारत को चाहता है, क्योंकि दुनिया इस भारत को ही जानता है पहले से, लेकिन भारत ही भारत नहीं था। अब भारत के नाते आगे बढ़ रहा है, और इसलिए दुनिया को with all the diversities of religions, languages and the limited sources on the planet, prosperous, harmonious, peaceful life, सब लोग कैसे जी सकते हैं, इसकी फिलॉसफी भारत के पास है, इसकी हिस्ट्री भारत की रही है, और इसका एक्सपीरियंस भारत के पास है। इसलिए एज ए लाइट हाउस जैसा दुनिया को दिशा देने के लिए भारत को अपनी सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को लेकर खड़ा होना है, टॉल नेशन के नाते खड़ा होना, यह विश्व शांति के लिए भी आवश्यक है और हमारे आत्म गौरव के लिए भी आवश्यक है। ऐसा एक संकल्प हम सबके मन में जागे, प्रकट हो, तो आज के 15 अगस्त का दिन का एक संकल्प सार्थक होगा। और जो 15 दिन से आपका जो ज्ञान यज्ञ चल रहा है, उस ज्ञान यज्ञ में मेरी भी एक छोटी सी आहुति देने का मौका आपने मुझे दिया, इसके मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। As we bring this valedictory session to a close, we extend our heartfelt gratitude to Dr. Manmohan Vaidya for his enlightening and motivating presence that has ignited the sparks of patriotism within each of us. Your insights have not only informed but also inspired us to embrace our culture and values wholeheartedly. A special note of thanks to all the dedicated resource persons and contributors who have enriched Disha Bharat's MyBHARAT campaign over these 15 days. Your unwavering commitment and contributions have been instrumental in this campaign's success. As we bid farewell, let us reflect on the words of Swami Vivekananda, arise, awake, and stop not until the goal is reached. Let us unite to uphold our nation's cultural heritage and values and take an oath to work towards the transformation of India for the better. With a renewed sense of purpose, we conclude this valedictory program. Namaskar.